Hello, dear students. Very good morning, all of you. I'm Chalavan Pavan Gauka. Welcome to a class for CA Foundation Economics, and we are done with the second unit. Okay, we have started with the chapter Public Finance. We are done with 2 units. We are done with fiscal functions, जिसके अंदर allocation होता है, redistribution होता है. कुछ पढ़ा है ऐसे? Allocation, redistribution. ठीक है? Allocation, redistribution. So you are not visible. And then in the next unit yesterday we are done with market failure. Today we will study the process of budget making. इंडिया में अब आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया है. इंडिया में हमने अब टैक्स कलेक्ट कर लिया है. अब इस टैक्स कलेक्ट जो हमने किया है, इसे हम लोग मैनेज कैसे करेंगे, खर्च कैसे करेंगे, गवर्नमेंट अप्रूव कैसे करेगा, क्या प्रोसेस होता है. दिस इज व्हाट दिस यूनिट 3 इज अबाउट. द प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग, द वेरियस सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट. इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिक बेस्ड. इस यूनिट में से रादर एक क्वेश्चन जरूर आएगा न्यूमेरिक्स बेस्ड. ऑलराइट, सो गाइस, यस, defining the government, okay, what is government budget, what are the objectives of budget concepts and terminologies, process of budget making, different sources of government revenue and expenditure, and process of management of public debt. That's all about this unit. छोटा सा unit है, ठीक है. Let's get this done. Governments all over the world have to perform manifold functions, from protecting their territory, maintaining the law and order, provision for public goods, implementation of comprehensive plans for economic and social welfare of its citizens. To execute these functions efficiently, the government requires adequate financial resources. Budget is a powerful policy instrument in the hands of the government to regulate and to restructure a country's economic priorities. पैसे आ गए हैं, हमने पैसे कलेक्ट कर लिए विद द हेल्प ऑफ हमने पैसे कलेक्ट कर लिए विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस रेवेन्यू. अब ये पैसे कहां हमने खर्च करने, कहां एलोकेट करने, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है, ये बजट में पता चलता है. द नीड फॉर बजटिंग अराइजेस आउट ऑफ द नीड फॉर एफिशिएंटली एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू एंश्योर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर. Government also needs to reallocate resources in accordance with its declared priorities. जब सरकार बनती है तो सरकार बनने से पहले, वोट करने से पहले, वो लोग इलेक्शन मैनिफेस्टो देती है, जिसमें लिखा होता है कि हम लोग क्या क्या करेंगे अगर हमारी सरकार बन गई तो. So by proper budgeting, government is able to ensure redistribution of income and wealth. By proper budgeting, the government is able to ensure redistribution of income and wealth. क्योंकि इंडिया में बहुत लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो सब्सिडीज देनी पड़ती है, फ्री फूड रेशनिंग करना पड़ता है, कुछ लोगों को ट्रांसफर पेमेंट्स करनी पड़ती है. कुछ याद है क्या आपको? Yes, sir. The other objectives of budget are reduction, elimination of economic fluctuation to bring in stability, sustainable increase in real GDP and reduction in the regional disparities. कुछ स्टेट्स बहुत अंडर परफॉर्म कर रही है, कुछ स्टेट्स ओवर परफॉर्म कर रही है, तो सबको सेम लेवल पे लाने के लिए बजटिंग की जाती है. In simple terms, budget is what? Where the money comes from and where the money goes. पैसा आएगा कहां से और पैसा यूज कहां होगा. The government budget is a document presented for approval and legislation by the government and contains estimates of proposed expenditure for a given period and proposed means of financing them. ये बजट कौन प्रेजेंट करता है? बजट कौन प्रेजेंट करता है, जल्दी बताओ. फाइनेंस कमीशन. करेक्ट, फाइनेंस मिनिस्टर. ऑफ लेट, ठीक है, ऑफ लेट ऐसे बजट प्रेजेंट किया जाता है, वित्त मंत्रालय ये प्रेजेंट करता है. वित्त मंत्रालय ने कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, यहां पे हमारे, ठीक है, बजटरी स्पीच दी जाती है और बताया जाता है कि हम लोग कहां कहां कितना कितना पैसा खर्चने वाले हैं. ऑलराइट, सो या दैट्स दैट. अपार्ट फ्रॉम यूनियन बजट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंट्री के में ही बजट रहेगा. Apart from union budget, state and local bodies have their own budgetary process for the next financial year. However, focus on this unit will be union budget only. State की भी budgets होते हैं, महाराष्ट्र स्टेट, यूपी स्टेट, बिहार स्टेट, गुजरात स्टेट, कर्नाटका, इनका भी बजट रहेगा.
आपकी लोकल बॉडीज जैसे पीएमसी, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपने सुना होगा, इनका भी खुद का बजट रहेगा, इनके पास भी रेवेन्यू आता है, इनके पास भी खर्चा करना पड़ता है। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है ये। इंडिया लेवल की बात करें तो द बजटरी प्रोसेस इज द मींस बाय व्हिच एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस टुगेदर फॉर्मुलेट अ कोहेरेंट सेट ऑफ टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग प्रपोजल। हमें कितने पैसों की जरूरत है, हमें कितने पैसे स्पेंड करने हैं, इन दोनों में कोहेरेंसी होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए। The finance of the government of India have traditionally been controlled by the Ministry of Finance. ये तो हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं। और थोड़ा नीति आयोग विच इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका भी काफी योगदान होता है बजट को लेके इनका भी काफी इनपुट होता है। The budget is prepared by the Ministry of Finance in consultation with नीति आयोग। ध्यान रखना, नीति आयोग भूल जाएंगे हम लोग। In other relevant ministries, the budget must be presented and approved by both the houses of the parliament from the beginning of the fiscal year, April 1st to 31st March. ठीक है, तो नीति आयोग के इनपुट से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गाइस टेल मी, नीति आयोग के पहले क्या था? नीति आयोग के पहले कौन सी बॉडी थी? एनीवन? प्लानिंग कमीशन। वेरी गुड कशिश, नीति आयोग के पहले था प्लानिंग कमीशन। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। ठीक है कशिश, इंटर। Despite the fact that the term budget has not been used in the Indian Constitution, the process of making it in general is referred to as budgeting. ठीक है, has not been used in the Indian, ऐसा budget नाम का वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, लेकिन process of making it is termed as budgeting. आर्टिकल 112, आर्टिकल जैसे हम लोग कहते हैं, क्या ध्यान में आना चाहिए? जैसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं आर्टिकल, क्या ध्यान में आना चाहिए? एक्ट, लॉ। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट नहीं। सेक्शन अगर बोला तो कोई एक्ट आएगा, लेकिन जैसे हम लोग आर्टिकल कहते हैं तो आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 112 of the constitution provides that in respect of every FY the president shall cause to be laid before both the houses of the parliament a statement of estimated receipts and expenditure of the government of India for that year, referred to as AFS, annual financial statement. So financial statement के अंदर will have balance sheet and P&L of the country, ये ऐसा होता है वो डॉक्यूमेंट, देख लीजिए। Okay, so guys, annual financial statement of the country, 112 of the constitution requires government to present to the parliament a statement of estimated receipts and expenditure in every FY, April 1st to 31st March. This statement is called as AFS, annual financial statement. बजट बनाने की प्रोसेस में क्या क्या आता है? प्रिपरेशन ऑफ बजट, प्रेजेंटेशन एंड एनैक्टमेंट ऑफ बजट एंड एक्सिक्यूशन ऑफ बजट। बजट बनाना, बजट को प्रेजेंट करना और बजट को एक्सिक्यूट करना, तीन थे। तो ये बजट पहले बनाया जाता है, जिस दिन हम लोग बजट पेश करते हैं उसके एक दिन, उसके बहुत दिनों पहले से, एक महीने पहले से प्रिपरेशन ऑफ बजट शुरू होता है। जिस दिन पार्लियामेंट में सब कुछ बताया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर हमारा स्पीच देता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। और बजट डिक्लेयर करने के बाद उसका अमल में लाते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सिक्यूशन। द बजट प्रोसेस मेनली कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस wherein the budget along with the accompanying documents are prepared in consultation with the various stakeholders, and legislative process wherein the budget is passed with the parliament after discussion. Despite the fact that union budget is presented on 1st February, the process of budget prep commences in August September. You know, आप 1st February को बजट प्रेजेंट करते हो। गाइस MCQ गोल्ड, MCQ गोल्ड, हम लोग बजट कब प्रेजेंट करते हैं? Every year 1st February. The process of preparing budget commences in अगस्त सितंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर। यानी अगर 2025 फरवरी को, ओके 1st February 2025 में अगर हमें बजट प्रेजेंट करनी है तो अगस्त सितंबर 2024 से ही तैयारियां स्टार्ट हो जाएगी। MCQ गोल्ड अगेन, द बजट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल फॉर कैरिंग आउट द बजट प्रिपरेशन एक्टिविटीज।
The process of budget making is set off with the budget division issuing the budget circular containing detailed instruction and formats for preparing the estimates to all the ministries, states, union territories, and autonomous bodies. The detailed estimates of expenditure are prepared by the ministries and departments according to their assessment of requirements for the subsequent year. Every department prepares estimates for receipts and expenditure separately. Every department prepares estimates for receipts एंड एक्सपेंडिचर. हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना खर्चा करना है, हर डिपार्टमेंट को अपने अपने खर्चे संभालना है. तो ये सब अपने अपने एस्टिमेट दे देंगे फाइनेंस मिनिस्टर को, उस हिसाब से पैसे एलोकेट किए जाएंगे. अ सीरीज ऑफ प्री बजट कंसल्टेशन आर डन बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विद द फाइनेंस मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, वेरियस स्टेकहोल्डर्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स इंक्लूडिंग industry association representatives from agriculture and social and welfare sectors, labor organization, experts from Niti Aayog, economists, to elicit, to give their suggestion on the proposed budget. So, the budget is presented in the parliament in such form as the finance minister may decide after considering suggestion of the estimates committee. Broadly, the budget documents depict information relating to receipts and expenditure for 2 years. They are BE budget estimates of the receipts and expenditure in respect of current year and coming year, for the current year through revised estimates and actuals of the year preceding the current year. The budget speech is mainly a policy document which draws attention to the proposed policies and programs of the government. FM makes a detailed budget speech at the time of presenting the budget before the Lok Sabha. The budget speech presents details of the proposals for the new FY regarding taxation, borrowings, expenditure plans of the government. Guys, who is he? Can you tell me? जिन्होंने सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट किया है श्री मुरारजी देसाई. He has presented 10 union budgets. Who is he? P. Chidambaram. P. Chidambaram, who has presented 9 union budgets. Pranab Mukherjee, he was the president of India also, presented 8 union budgets. ठीक है. और हमारे current finance minister Nirmala Sitharaman ji. Yeah, the budget speech is mainly a policy document. All right. इसके अंदर part A होता है. The budget speech of the finance minister is usually in 2 parts. Part A, the budget speech gives an outline of the prevailing macroeconomic situation of the country. अभी का सिचुएशन क्या है कंट्री का, मैक्रो इकोनॉमिक, and the budget estimates for the next FY. Elaborating the priorities of the government, the minister presents a broad framework of the total funds raised by the government via taxes or borrowing, proposed government expenditure, allocation for different sector, fresh schemes for the different sector. Or part B, the budget speech details the progress the government has made. So, परिस्थितियां क्या है पार्ट ए में दी जाती है और हमारी सरकार ने क्या प्रोग्रेस किया है ये दिया जाएगा पार्ट बी में. Okay, the progress of the government has made on the various development measures, the direction of the future policies, and the government's tax proposals of the upcoming financial year, including variations in the current taxation system. Then, annual financial statements shows the receipts and expenditure of the government in 3 separate parts. पहला CFI, Consolidated Fund of India. दूसरा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. तीसरा पब्लिक अकाउंट. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? गवर्नमेंट का सारा पैसा, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो भी है, सारा एक जगह कंसोलिडेट होता है, उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. The largest government fund comprising of all the cash from direct and indirect taxes, loans taken by the government, returns made on principal interest on the loans given out by the government of India. उसके बाद कंटिजेंसी फंड आता है. कंटिजेंसी फंड के बारे में भी आगे पढ़ेंगे. इमरजेंसी फंड होता है वो. और पब्लिक अकाउंट, जो लोगों का पैसा है, स्मॉल सेविंग्स है, वो इस अकाउंट में रहता है. The list of budget document presented to the parliament besides finance minister's speech are AFS तो देते ही हम लोग, demand for grants, finance bill, statement mandated under FRBM. FRBM क्या होता है? Anyone? Fiscal responsibility and budget management. Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, FRBM. Then statements made under FRBM, Macroeconomic Framework, and Medium Term Fiscal Policy, Fiscal Policy Strategy Statement. 9 other documents which are in the nature of explanatory statements supporting mandated documents are also presented along with the documents mentioned above. Okay? The expenditure of certain categories, example the emoluments and the allowances of the President of India and his or office, emoluments of the judges, emoluments है ना, राशि,
और मानधन जो इनको दिया जाता है of the judges of the Supreme Court and higher rank personnel of the constitutional bodies are charged on the consolidated fund of India are not subject to vote of parliament. यानी ये पैसे तो दिए जाएंगे, इसमें पार्लियामेंट के लोग वोट नहीं करेंगे, ये पैसे दे दिए जाएंगे and are also indicated separately in the budget. जिस साल इलेक्शन होता है उस साल बजट कितनी बार प्रेजेंट किया जाता है? बोलो. 2 times. करेक्ट. बाय कन्वेंशन, यानी जनरली ऐसा होता है क्योंकि इलेक्शन के पहले थोड़ा रिलैक्स बजट दिया जाता है. बाय कन्वेंशन इन इलेक्शन ईयर द बजट मे बी प्रेजेंटेड ट्वाइस. द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट टू एंश्योर टू सिक्योर अ वोट ऑन अकाउंट्स फॉर अ फ्यू मंथ्स. यानी इलेक्शन के हिसाब से होता है जो मैंने आपको बताया. दिस इज फॉलोड बाय द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दैट ईयर और फुल फ्लेजेड बजट. यानी अगर सरकार बदल जाती है मान लो, तो वो सरकार अपने हिसाब से नया बजट प्रेजेंट करेगी. The budget is discussed in 2 stages. First, there is a general discussion on the budget as a whole. After the first stage of general discussion on the union budget, the House is adjourned for a fixed period, postponed. During this period, the demand for grants of various ministries, departments are considered by the standing committees. And once the reports are presented by these committees within the stipulated time, the House proceeds to discussion and conducts ministry-wise voting on demand for grants. So, guys, demand for grants का discussion किया जाता है. लोकसभा यानी हर मिनिस्ट्री को कितना पैसा चाहिए डिमांड करे, आप डिमांड करो, ठीक है, हम देखते हैं पैसे देना है या नहीं देना है. द लोकसभा इज द पावर टू कॉन्कर और टू रिफ्यूज एनी डिमांड और इवन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रांट सॉट बाय द गवर्नमेंट. यानी मिनिस्ट्री आपका, ठीक है, जो डिपार्टमेंट है आपका काम है डिमांड्स को ग्रांट करना. ओके, ग्रांट्स का डिमांड करना, ठीक है. डिमांड करने के बाद फुलफिल कर रहा है या नहीं वो लोकसभा डिसाइड करेगी. The budget is also laid on the table of Rajya Sabha soon after the FMS completed his speech in the Lok Sabha. The Rajya Sabha does not vote on the demand for grants. There is only a general discussion on the budget. इसलिए लोकसभा थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. एप्रोप्रिएशन बिल, अब आपने डिमांड कर लिया, आपको देना है या नहीं देना है, अब ये डिसाइड करता है. एप्रोप्रिएशन, आफ्टर द जनरल डिस्कशन ऑन द बजट प्रपोजल, द वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स हैव बीन कंप्लीटेड. द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस एप्रोप्रिएशन बिल, पैसे एप्रोप्रिएट करना. The appropriation is intended to give authority to the government to incur expenditure from and out of the CFI, Consolidated Fund of India. Motions for reduction to various demand for grants. इन्हें रोड मिनिस्ट्री ने मान लो 50,000 करोड़ का डिमांड किया. रोड मिनिस्ट्री ने रोड्स बनाने के लिए 50,000 करोड़ का डिमांड किया है और गवर्नमेंट कह रही है नहीं यार, इस साल हम लोग इतने रोड्स नहीं बनाना चाहते. गवर्नमेंट कह रही है इस साल हम लोग इतने रोड्स नहीं बनाना चाहते, ठीक है, कट करो. ये 50,000 करोड़ को हम लोग 20,000 करोड़ पे ला रहे हैं. सो मोशंस पास करते हैं. मोशंस फॉर रिडक्शन टू वेरियस डिमांड फॉर ग्रांट्स आर मेड इन द फॉर्म ऑफ कट मोशन सीकिंग टू रिड्यूस द सम सॉट बाय द गवर्नमेंट. तो ये 50,000 करोड़ का 20,000 करोड़ हो जाएगा, ये कट मोशन पे डिपेंड करता है. फाइनेंस बिल, ये जो बजट होता है उसका जो प्रीलिम पार्ट होता है उसको बिल कहते हैं, ठीक है. अब एक बार बिल पास हो गया, ठीक है, एक बार बिल आ गया तो इसको पार्लियामेंट को पास करना है अगले 75 दिन में. द पार्लियामेंट हैज टू पास द फाइनेंस बिल विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 75 डेज ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन. काफी बार ग्रांट पे डिस्कशन होता है लेकिन उसका कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता. On the last days of the days allotted for discussion on the demand for grants, the speaker puts all the outstanding demands for grants to the vote on the house. This process is known as guillotine. It is a device to bringing the debate for financial proposal to an end within a specified time. बंद करो सब, तुमसे डिस्कशन, हम लोगों ने एक इतने पैसे देने या नहीं देने इसके लिए बहुत दिन डिस्कशन किया. अरे लेकिन फाइनेंस बिल को फाइनलाइज करना है 75 दिन में, तो जिस दिन हमें सारा मैटर रफा दफा करना है तो गिलोटिन कहते हैं इसको. खत्म करो सारा, जो वोट करना है, हाँ करना है नहीं करना है, इसको मैटर खत्म करो. स्पीकर विल पुट ऑल द आउटस्टैंडिंग डिमांड्स फॉर ग्रांट्स टू वोट. अब कोई डिबेट नहीं होगा, अब तुम फाइनल बताओ क्या करना है. After the finance bill has been passed by Lok Sabha, it is transmitted to Rajya Sabha for its recommendation. The bill being a money bill, Rajya Sabha has to return it within a period of 14 days or without recommendations. With or without recommendations. The recommendations of Rajya Sabha may be accepted or rejected by the Lok Sabha. Rajya Sabha की ज्यादा रिस्पेक्ट है नहीं, इसलिए तो सब लोग मेजर लोग लोक सभा इलेक्शन से ही लड़ते हैं क्योंकि इसी की चीजें ज्यादा मायने रखती है. However, from 2017-18, the date of presentation of budget has been advanced to 1st February. An important, ठीक है, 1st February हो गई है. An important budgetary reform was the merger of railway budget
with the general budget for the financial year 2017-18. रेलवे बजट अलग बनता था, अब वो जनरल बजट के साथ मिक्स हो गया. कौन से साल से? 2017-18. सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, इंडिया में पैसे कहां से आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू of the Ministry of Finance exercises control in respect of revenue matters related to direct and indirect union taxes. Department is also interested with the administration and enforcement of regulatory measures provided in the enactments concerning GST, central sales tax, stamp duties and other relevant fiscal statutes. Statutes यानी law. CBDT direct taxes collect करता है. CBIC ये GST and customs collect करता है. Sources of revenue, corporation tax, taxes on income, wealth tax, custom duty, union excise duty, goods and service tax and taxes on union territories. ये major sources है government revenue के. Center's net tax revenue is the total tax of revenue after paying the state share and national calamity contingent duty transfer to national calamity contingency. यानी बाढ़ आ जाती है, ठीक है, सूखा पड़ जाता है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत इमरजेंसी वाले इश्यूज आते हैं, तो उनको भी पैसे एलोकेट कर दिए जाते हैं और फिर जो बचता है वो सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू होता है. स्टेट्स को भी पैसे बांटे जाते हैं. नॉन टैक्स रेवेन्यू कंप्राइजेस ऑफ इंटरेस्ट रिसीट्स, डिविडेंड्स, ठीक है, प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सरप्लस ट्रांसफर फ्रॉम आरबीआई, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज एंड रिसीट्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज. वेरियस सोशल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सच एज मेडिकल सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ, ब्रॉडकास्टिंग, दूरदर्शन की बात हो रही है, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, हाउसिंग, इकोनॉमिक सर्विसेज लाइक कम्युनिकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, रेलवेज एंड जनरल एडमिन सर्विस ऑल्सो यील्ड रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. यहां से रेवेन्यू भी मिलता है, बस हम लोग पैसे भी देते हैं, हम लोग पैसा खर्चते भी है. जैसे दूरदर्शन से हम लोग पैसा खर्चते हैं, लेकिन पैसा खर्चने के बाद हमें यहां से फंड्स भी मिलते हैं ना. हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं दूरदर्शन पे. कैपिटल रिसीट्स, non-debt capital receipts like recoveries of loan and advances, miscellaneous capital receipts like disinvestment. डिसइन्वेस्टमेंट यानी क्या? कोई हमने कंपनी बेच दी, हमने मान लो एलआईसी के शेयर्स हमने बेच दिए, गवर्नमेंट का जो शेयर था उसमें 20% शेयर्स बेच दिए. 20% शेयर्स बेच के हमें 5 लाख करोड़ रुपए मिले, 5 लाख करोड़ रुपए. तो ये इन्वेस्टमेंट का अपोजिट, पैसे निकाल लेना, इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं. तो ये जो पैसा है ये कैपिटल रिसीट्स ही है, कैपिटल रिसीट्स. कैलकुलेट द कैपिटल रिसीट्स, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा. कैलकुलेट द कैपिटल रिसीट्स ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आज हम सॉल्व भी करेंगे. सो डेट कैपिटल रिसीट्स, पहला ही नॉन डेट, इससे हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं आता, कोई भी लोन नहीं बनता है. ये नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स है, बिल्कुल इस पे क्वेश्चंस आएंगे, इस पे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना आप. डेट कैपिटल रिसीट्स दैट इंक्लूड्स मार्केट लोन्स, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल बोरोइंग, सिक्योरिटीज इश्यूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, स्टेट प्रोविडेंट फंड, नेट एक्सटर्नल डेट्स एंड अदर रिसीट्स. ये ऐसी चीजें जो कैपिटल रिसीट्स है लेकिन इससे हम पे उधार चढ़ जाता है, तो ये हुआ डेट कैपिटल रिसीट्स. ओके, उसके बाद पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट. इन द व्यू ऑफ लिमिटेड नेचर ऑफ रिसोर्सेज, अ प्रूडेंट, रैशनल, लॉजिकल एंड वेल डिजाइन पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज एसेंशियल, ताकि ऐसा ना हो जाए कि गवर्नमेंट हमेशा डेफिसिट में आ जाए. आपने ज्यादा खर्चा कर दिया, जितना आपका कलेक्शन नहीं है उतना आपने खर्चा कर दिया, तो दैट विल बी टू मच ऑफ वरीसम फॉर द कंट्री. लार्जर डेफिसिट, इंडिया का बजट आज भी डेफिसिट में ही है, तो लार्जर डेफिसिट इश्यू हो सकता है, हायर लेवल ऑफ टैक्सेशन करना पड़ सकता है, लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है अगर आपने पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया तो, फ्यूअर रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज एंड ग्रेटर डेट बर्डन इन द फ्यूचर. तो एक्सपेंडिचर सही से करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ता है. यू जस्ट डोंट डू ऑन द शॉपिंग स्प्री ऑन द पीपल्स मनी. सो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर डेडिकेटेड है उसके लिए. ये सब कुछ इनका मॉनिटर किया जाता है, इन पे ऑडिट किया जाता है कि ये कर क्या रहा है, पूरी तरह कंट्रोल किया जाता है, इसका मॉनिटरिंग होगा, ऑडिट होगा
और जो भी खर्चे होंगे वो रिकमेंडेशंस पे होंगे, फाइनेंस कमीशन के और सेंट्रल पे कमीशन पे। ठीक है, एक्सपेंडिचर की पूरी प्रोफाइलिंग ही होगी, कौन से एरिया में हमें कितना पैसा खर्च करना है। तो सेंटर्स एक्सपेंडिचर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंटर्स, यानी कौन से एरिया में खर्च करना है, एक्सपेंडिचर सेंटर कहते हैं उसको। सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड अदर सेंट्रल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग सीपीएसई एंड ऑटोनोमस बॉडीज। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी होती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर एंड अदर ट्रांसफर टू स्टेट्स। तो बहुत सारे एरिया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स are 100% funded by the union government and centrally sponsored schemes a certain percentage of funding is borne by the states. ज्यादा काफी बार पैसों की कमी होती है, टैक्स से हम लोग इतना पैसा रेज नहीं कर पाते, तो आम जनता से डायरेक्टली फंड रेज कर लेते हैं। इन द इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज जनरली गवर्नमेंट इज जनरली द लार्जेस्ट बोरोवर। Government debt for internal external sources conducted by the CFI, Consolidated Fund of India, is defined as public debt. Government raises fund primarily from the domestic market using market-based and fixed rate instruments to the finance and its fiscal deficit. Public management refers to the task of determining the fiscal and monetary authorities, the size and composition of debt, maturity pattern, interest rates, redemption of debt, etc. It's the process of setting up and implementing the strategy for managing public debt in order to raise the required amount of funding at the desired risk and cost level. Okay, the institutions responsible for public debt management, again Ministry of Finance. Institution responsible for public debt management is Ministry of Finance. और कौन इन्वॉल्व होगा, गेस करो कौन इन्वॉल्व होगा? RBI. So the institutions responsible for public debt management, Reserve Bank of India, Ministry of Finance, and Ministry of Finance में specifically Budget Division and Reserve Bank of India. Okay, the responsibility for managing the domestic debt of the central government and 28 state governments and 2 union territories is entrusted with the Internal Debt Management Department of the RBI. RBI acts as a debt manager for marketable internal debt, while treasury bills are issued to meet the short-term cash requirements of the government. Dated securities are issued to mobilize longer-term resources to finance the fiscal debt. From 1997 onwards, RBI also provides short-term credit up to 3 months to the state governments banking with it in the form of ways and means advances to bridge temporary mismatch in the cash flow. So 3 महीने के लिए जो लोन दिया जाता है उसको कहते हैं ways and means advances. External debt is managed by the Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance. Most of the external debt is sources from multilateral agencies like International Bank for Reconstruction and Development, Asian Development Banks. इनसे भी बाहर की बॉडीज से भी पैसा लिया जाता है. The fiscal responsibility and budget management was passed in 2003 to provide a legislative framework for reduction of deficit. जो भी हमारा डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस है इंडिया का, so वो डेफिसिट हमें कम करना है, thereby the debt of central government to sustainable level. The objective of the act are intergenerational equity in fiscal management, long-run macroeconomic stability, better coordination between fiscal and monetary policy, transparency in fiscal operation. अगर हम लोग देखें तो हमारी लायबिलिटीज और हमारे डेट्स की पोजीशन ये है, हमारे लायबिलिटीज और डेट्स की पोजीशन ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. In the line of the global trend, the government of India also responded to pandemic challenges and increased the expenditure to health and social sector. सबने पैंडेमिक के चलते हेल्थ सेक्टर में काफी सारा खर्चा किया है. The Reserve Bank of India is proactively engaged in development of government securities market, including broadening of investor participation. As a part of continuing efforts to increase retail participation in GSEC, RBI Retail Direct facility was announced in February 2021. Budget से related कुछ concepts. So one of the very first concepts is balanced budget. Balanced budget क्या होगा? Anyone? Where revenue is equal to expenditure, that is called as balanced budget. सर लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा. जी हाँ, ऐसा नहीं होगा. मोस्टली इंडिया में तो एक्सपेंडिचर ज्यादा रहा है रेवेन्यू से. इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड बजट. इसको डेफिसिट बजट भी कहते हैं. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रेवेन्यू ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से, दैट इज कॉल्ड एज अ सरप्लस बजट. बिल्कुल आ सकता है. एकदम इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है क्योंकि एकदम ही इजी है, बेसिक है एकदम. कैपिटल रिसीट्स
कोई भी ऐसा फॉर्म जो रेवेन्यू रिसीट्स नहीं है, ठीक है, दैट लीड टू द रिडक्शन इन द एसेट्स और इंक्रीज इन द लायबिलिटीज, उसको कैपिटल रिसीट्स बोलेंगे। लेकिन जो भी हमारी अर्निंग्स होती है वो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स होगी, ठीक है। टैक्स रेवेन्यूज होती है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज होती है गवर्नमेंट की मेजरली। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हाल फिलहाल हम लोग खर्चा करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे, दोज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ एक्सपेंडिचर हम लोग कैपेक्स करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, loans and advances and whatnot. They are expenditure of the government which result in creation of physical or financial assets or reduction in financial liabilities. That is called as capex, capital expenditure. Deficit वही difference. Deficit का मतलब difference. तो budgetary deficit is defined as an excess of total estimated expenditure over total revenue. That is the difference between receipts and expenditure. Both revenue और capital का जो मिला के जो difference रहेगा ओवरऑल बजटरी डेफिसिट रहेगा। सो रेवेन्यू, ठीक है, तो ये बजटरी डेफिसिट, उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में कैपिटल का कुछ पॉइंट नहीं रहेगा, इट विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट, एनीथिंग रिलेटेड टू पब्लिक मनी, फिस्कल डेफिसिट विल बी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बिल्कुल इस इन फॉर्मूलेस पे जरूर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। Fiscal deficit is equal to total expenditure minus total receipts excluding borrowing। इसमें borrowing नहीं आएगा, बिल्कुल MCQ बनेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे, आप ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट रहेगा। प्राइमरी डेफिसिट विल बी फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। तो इन्हें फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसमें से नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी माइनस करना पड़ेगा। फाइनेंस बिल, अ बिल produced immediately after the presentation of union budget detailing the imposition, abolition, alteration or regulation of taxes। imposition है कोई नया टैक्स लेना, abolition है कोई पुराना टैक्स निकाल देना। सर टैक्स निकालते थोड़ी है, बिल्कुल निकालते हैं। पहले के जमाने में वेल्थ टैक्स भी होता था, अभी वेल्थ टैक्स है ही नहीं, आज abolish कर दिया उस टैक्स को। देन ऑल्टरेशन, चेंज करना, एंड रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस। आउटकम बजट, बिल्कुल इस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। यानी हमने जो पैसे अलोकेट किए थे बजट में, उसका हमने कैसे यूज किया है, इसका रिजल्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड एज द आउटकम बजट। द आउटकम बजट establishes a direct link between budgetary allocation of scheme and its annual performance target। आपका एनुअल परफॉर्मेंस टारगेट क्या था? आपको हमने 20,000 करोड़ रुपए रोड बनाने के लिए दिए थे। आपने कहा था कि 20,000 करोड़ से हम लोग इंडिया में 50,000 किलोमीटर की रोड बनाने वाले हैं। तो आपने कितने रोड्स बनाए बताओ? आउटकम बजट है, रिजल्ट बताता है ये। गिलोटीन, बताओ गिलोटीन क्या है? एनीवन? मिनिस्ट्री ने मांगे हुए पैसे देना है कि नहीं देना है, इस पे फाइनल कॉल स्पीकर बताएगा कि भाई खत्म करो, तुमने बहुत डिस्कस कर लिया, अब आ जाओ, ठीक है। द पार्लियामेंट इज अ वेरी लिमिटेड टाइम फॉर एग्जामिनिंग एक्सपेंडिचर of all the ministries. So once the prescribed period for discussion on demands for grants is over, the Speaker of Lok Sabha puts all outstanding demands for grants, whether discussed or not, to vote. The process is popularly known as guillotine. Cut motions, क्या होता है cut motions? आपने पैसे मांगे, बजट में कटौती। हाँ, बजट में कटौती, करेक्ट। आपकी डिमांड में कटौती, 50,000 करोड़ मांगे थे रोड बनाने के लिए, 20,000 करोड़ ही देंगे। Motions for reduction of various demands for grants are made in the form of cut motions seeking to reduce the sum sought by the government on the grounds of economy or difference of opinion or just in order to voice a grievance. Consolidated Fund of India, इंडिया का सारा पैसा जो एक जगह पे आएगा उसको कहते हैं CFI। और इमरजेंसी के वक्त हम एक फंड को तोड़ देंगे, एक गुल्लक को तोड़ देंगे, उस गुल्लक का नाम है कंटिजेंसी फंड। कितना रुपए होता है कंटिजेंसी फंड? 500 करोड़। 500 करोड़, 500 करोड़ का होता है कंटिजेंसी फंड। द फंड प्लेस्ड इन द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट टू एनेबल हिम और हर टू मेक एडवांसेस टू द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट टू मीट अर्जेंट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। Contingency fund enables the government to meet unforeseen expenditure and does not require prior legislative approval, unlike with the CF। किसी का कोई अप्रूवल नहीं रहेगा, प्रेसिडेंट अपने हाथ से इसको खर्च करेगा। और अगर मान लेते कंटिजेंसी फंड में हमने इमरजेंसी में 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो इसकी रिफिलिंग कहां से होगी, रिकूपमेंट कहां से होगी? कंसोलिडेटेड फंड से। पब्लिक अकाउंट, ये जो लोग छोटे छोटे पैसे जमा करते हैं गवर्नमेंट के साथ, उसको पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 266 ऑफ द कंसोलिडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट इज यूज्ड इन रिलेशन टू ऑल द फंड्स
flows when the government is acting as a banker. Examples include PF and small saving, provident fund and small saving. This money does not belong to the government. It is to be returned to the depositors. The expenditure from this fund need not be approved by the parliament. So guys, yeah, that's that. Public finance में एक और unit we are done with. Process of budget making. In the next unit we shall do fiscal policy. कुछ MCQ solve कर ले budgeting के. Are you ready? Yes. चलो multiple choice questions देख लेते हैं. First question. The difference between budget deficit of the government and its debt service payments is. Answer please मुझे chat box में लिखेंगे. budget deficit and the debt budget deficit तो पहले ही हो गया है and its debt service payment. तो guys the answer is primary deficit. The answer is primary deficit. All right, fiscal deficit minus debt interest liabilities. ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी उन्होंने और उसमें से हमें कुछ कैलकुलेट करना है. ठीक है, इन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ऐसा एक आपको बजटरी स्टेटमेंट दे देंगे और आपको बोलेंगे कि लो निकालो इसमें से रेवेन्यू डेफिसिट. कंट्री ए है, कोई भी एक कंट्री, XYZ कंट्री हो सकती है, उसमें से आपको निकालना है रेवेन्यू डेफिसिट. तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना होगा, करो कैलकुलेशन. आगे आंसर सर सिंपल ना, कैसे निकाला एनीवन? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. करेक्ट है, तो रेवेन्यू का डेफिसिट आ गया 4500 बराबर 24,500 माइनस 20,000. करेक्ट है, ऐसे ही सोचा आपने? Yes, sir. Perfect. The fiscal deficit of the country. Fiscal deficit. Fiscal deficit का फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. करिए. वेरी गुड सैम, गुड आंसर. कैसी है ये भी बताना है जल्दी जल्दी. हाँ गाइज, आपकी कैलकुलेशंस भी बताओ मुझे जल्दी. वेटिंग. 26,000 plus 24,500 minus 5,000 minus 20,000 minus 1,500. राइटिंग में दो, चैट बॉक्स में राइटिंग में दो. कैलकुलेटर्स लेके जाना है आपने. हाँ जी, यस, राइटिंग में. बोरोइंग और इंटरेस्ट पेमेंट को इग्नोर किया. हाँ, इंटरेस्ट पेमेंट को इग्नोर करना है. करेक्ट, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट फिस्कल डेफिसिट में नहीं आता. इंटरेस्ट पेमेंट को कंसीडर किया जाता है किसमें? प्राइमरी डेफिसिट में. करेक्ट. Alright guys, the correct answer is 24,000. The fiscal deficit is 24,000. Fiscal deficit total expenditure minus total receipts. लेकिन इसमें से borrowing consider नहीं करना है. तो क्या ये 15,000 आपने consider करना है? नहीं. क्या हमने इस पे इंटरेस्ट जो दिया है वो कंसिडर करना है? नहीं. नहीं. बाकी सब प्लस माइनस करो, आपका आंसर निकल जाएगा. ठीक है, उसके बाद हमारा फिस्कल डेफिसिट आया, फिस्कल डेफिसिट है 24,000. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी डेफिसिट. क्या करेंगे? फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे. ठीक है, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज जो है हमारी, तो आंसर विल बी, बोलो 26,000. नो, 26,000 कैसे आएगा?
हमारा फिजिकल डेफिसिट है 24,000, इसमें से जो इंटरेस्ट लायबिलिटी है 2,000 है, माइनस कर दो। करेक्ट है? फॉर्मूला क्या है प्राइमरी डेफिसिट का? फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज, तो इंटरेस्ट 2,000, तो आंसर इज 22,000। यस सर, यस सर, कैलकुलेटर लगा माइनस। कोई बात नहीं, इट्स ओके। इन नीति आयोग, नीति स्टैंड्स फॉर नीति, व्हाट इज National नीति? Institution for Transforming India. ABCD में से B इज द करेक्ट आंसर। एप्रोप्रिएशन बिल इज इंटेंडेड टू, काम क्या है एप्रोप्रिएशन बिल का? किसे कितने पैसे देने हैं? गिव अथॉरिटी टू द गवर्नमेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर फ्रॉम एंड आउट ऑफ द CFI। पब्लिक डेट मैनेजमेंट एम्स एट, पब्लिक डेट मैनेजमेंट, कम ऑन, पहला ही लाइन है पब्लिक डेट मैनेजमेंट का, फर्स्ट लाइन है ये, बिल्कुल आएगा एग्जाम में। यानी हर टॉपिक का पहला लाइन भी नहीं पढ़ा आपने, ऐसा पूछेंगे वो आपसे। The answer is raising the required amount of funding at the desired risk and cost levels. The railway budget is a part of general budget from the budget for financial year 2017-18. बिल्कुल ये सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा। आउटकम बजटिंग क्या होगा? हाँ, आउटकम बजटिंग सर ये रिजल्ट रहता है सर, रिजल्ट। It establishes a direct link between the budgetary allocation and performance target measured through output and outcome indicators. Corporate tax, what is corporate tax? कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है? पहले ये बता दो। Revenue तो receipt. रेवेन्यू रिसीट है, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्ट कौन करता है? कॉर्पोरेट टैक्स इज जस्ट लाइक इनकम Union टैक्स government. फॉर द, Union government. या इट इज कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड इट्स अ रेवेन्यू रिसीट। गवर्नमेंट बोरिंग्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ Capital receipt. Capital receipt. कैपिटल। ABCD कहना है आपको, आपको आंसर नहीं बताना है प्लीज केशव, आपको ऑप्शन में लिखना है। चलो Sorry, sir. कोई बात नहीं, इट्स ओके। द कैपिटल रिसीट्स, आपको एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन दी है, सारी इंफॉर्मेशन दी है, इसमें कैपिटल रिसीट्स कितनी है कैलकुलेट करना है, करिए जल्दी। ऑप्शंस नहीं कैलकुलेट करो ना, ऑप्शन क्यों चाहिए? सिंपल है, रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन क्या कैपिटल रिसीट्स है? जी हाँ, रिकवरी ऑफ लोन कैपिटल रिसीट्स। सैलरीज टू गवर्नमेंट सर्वेंट, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये तो हमें रिसीट्स कंसिडर करनी है। इंटरेस्ट पेमेंट नहीं, पेमेंट टुवर्ड सब्सिडीज नहीं। अदर रिसीट्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स, क्या कैपिटल रिसीट्स में ली जाएगी? जी हाँ, ली जाएगी, ठीक है। एंड देन टैक्स रेवेन्यू, दैट्स अ रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज, बोरोइंग क्या ये भी कैपिटल रिसीट्स होती है? जी हाँ। तो गाइस अब बताइए, फिर 5.1 प्लस 11.6 प्लस 6.8 क्या आंसर आ रहा है? करेक्ट, करेक्ट सैम, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, 23.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ऐसे कैलकुलेट करना है, और ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। रेवेन्यू डेफिसिट इज, रेवेन्यू डेफिसिट इजी होना चाहिए, ये रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टैक्स रेवेन्यू 26.3,
नो आंसर येट. सैलरी तो देनी है, तो ये एक्सपेंडिचर में कंसिडर होगा. नॉन टैक्स रेवेन्यू भी रेवेन्यू है, ऐड कर दो. तो ये सारा हमारा एक्सपेंडिचर हुआ. द करेक्ट आंसर इज 7 लाख करोड़. केशव, ये सवाल पूछा भी था आपने, मुझे याद है कि आपको? Yes, sir. Yes, sir. The non-debt capital receipts, the non-debt capital receipts of this country is non-debt capital receipts. Non-debt पूछा, debt का एलिमेंट नहीं रहेगा. So non-debt, डिसइन्वेस्टमेंट से आया हुआ पैसा, ये तो जरूर आएगा इसमें. और बोरोइंग्स तो डेट रिसीट्स आ जाएगी. और रिकवरी ऑफ लोन्स आ जाएगा. करेक्ट है, रिकवरी ऑफ लोन्स. तो 11.6 प्लस 5.1 कितना हुआ? 16.7. क्या रिकवरी ऑफ लोन्स, ये 5.1 और ये नॉन डेट है, ये बोरोइंग्स डेट में आ जाएगा. तो ये कैपिटल रिसीट्स है लेकिन डेट कैपिटल रिसीट्स है ये. ओके गाइस, क्यों नहीं आ रहा है ये आंसर? आ रहा है, ठीक है. A budget is said to be unbalanced when? A budget is said to be unbalanced All of when? the above. All of the above. All of the above. ABCD बताएंगे प्लीज चैट में. Then fiscal deficit. Fiscal deficit refers to excess of government's revenue. नहीं. Excess of total expenditure over total receipts. B is the correct answer. B, yes. The excess of total expenditure ज्यादा, receipts excluding borrowings. ठीक है, याद रखना है, टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग. फिस्कल डेफिसिट में बोरोइंग्स नहीं आती है. बजट ऑफ द गवर्नमेंट जनरली इंपैक्ट्स रिसोर्स एलोकेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबिलिटी, ऑल. फर्स्ट यूनिट की बात हो रही है यहां पे. द आंसर इज ऑल. Which of the following is a statement submitted along with the budget as a requirement of FRBM? सोचिए प्लीज. The answer is B and C. Macroeconomic framework and medium term fiscal policy cum fiscal policy strategy. Government borrowing is treated as capital receipt because no, पहला रीजन नहीं है उसका. It used to create assets. तो assets के कारण, assets create करने के कारण गवर्नमेंट बोरोइंग को कैपिटल रिसीट्स कहते हैं, ऐसा नहीं है. बिकॉज इट क्रिएट्स लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट. रेवेन्यू से भी तो हम लोग एसेट क्रिएट कर सकते हैं ना, रेवेन्यू रिसीट से भी. एसेट तो किसी से भी क्रिएट कर सकते हैं, बोरोइंग से जरूरी थोड़ी है. तो इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर. रिटेल डायरेक्ट स्कीम इनिशिएटेड बाय आरबीआई, करेक्ट है, ताकि आसानी से जीसेक मिल सके लोगों को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सर बोलिए ना सर, वो 16 का आंसर शायद नन ऑफ दिस होगा. 16 का आंसर, इसका आंसर यस सर. क्यों? सर बुक में चेक किया तो डी दिखा रहा है, पता नहीं. एक मिनट, तुम भाई दिमाग लगाओ ना. हाँ सर, मुझे भी लग रहा है, पर बुक में 16 का अरे डी भाई दिया है. मेरे, बुक का छोड़ दो, तुम बुक का छोड़ दो बुक का, दिमाग लगाओ. फिस्कल डेफिसिट, द एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर. एक मिनट, एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल, सही तो है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? फॉर्मूला है तुम्हारे सामने. टोटल एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है टोटल रिसीट से, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स. बुक कहां देखते हो, दिमाग है कि नहीं तुम्हारे पास? गाइस, मॉड्यूल में, नोट्स में काफी बार आंसर गलत हो सकता है, ठीक है? ऐसा अंधाधुंध नहीं आंसर शॉर्ट करने का, ठीक है?
Okay, sir. Non-debt capital receipts are those non-debt capital receipts. Are those that does not create any future repayment burden on the government. Which of the following is a capital receipt? हाँ बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन तो आना ही चाहिए. The answer is sale proceeds from the disinvestment. Sales proceeds यानी outcome यानी पैसा. यहाँ पे इसका मतलब है पैसा. Grants given by the central government to state government is a revenue expenditure as it does not create asset, okay, or nor reduce any liability for the government. Guys, important MCQ है ये. हमको लगता है ठीक है ये लोन दे दिया, नहीं ये लोन नहीं है, ये पैसे खर्च करने के लिए दिया है. इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर आरबी रिजर्व बैंक टू द स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिज द टेम्पररी मिसमैचेस इज कॉल्ड एज व्हाट. कैसे दिए जाते हैं ये पैसे? The answer is C, ways and means advances. So guys, that's all about public finance में process of budget making. ठीक है, public finance में process of budget making 3 units हो चले हमारे. ठीक है, and we are almost done with the chapter of public finance. एक और unit बचा है which we shall cater in the next lecture. Alright guys, this is Pawan signing off. Since yet another lecture, this is Pawan signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye.